Hello students, today we are going to discuss about a chapter that is the Cold War era of political science book, and which book? That is the Contemporary World Politics. Okay, so this would be our first video of this book and of this chapter also. Okay, what is the name of chapter? The Cold War era. Okay, so let's get started and move on to our next slide. So first of all, before we go deep into studying different topics of this chapter, students, we need to understand what is this book all about, why we are studying contemporary world politics, why this book has been named as Contemporary World Politics. Okay, what could be the meaning of contemporary, what is the meaning of world, and what is the meaning of politics, and what is the meaning of world politics. Okay, and why should we studying contemporary world politics? Okay, what are the significance of studying contemporary world politics? Okay, so this is very necessary because it gives an idea about the major themes of, major concepts of, not only of this chapter but the whole book. And if you will understand this introductory concept, okay, what is this book all about, it will help you throughout the entire book. Okay, entire books means the study of entire book, all the chapters, and throughout your studies up to the examination, how to approach and how to deal with the concepts of political science, okay, and of this book, especially about the world politics. Okay, so let's move on to our topic. What is this book about? Okay, so the title is The Contemporary World Politics, student. As you can see it here on the screen, title is Contemporary World Politics. We can break it into two major divisions. One is contemporary. Okay, break the title into two parts. One is contemporary and the second is world politics. Okay, and we'll understand separately what is the meaning of contemporary and what is the meaning of world politics, what is the meaning of politics, and then we'll combine together what is the meaning of contemporary world politics. Okay, so move on to the next slide. And because we are going to study about world politics, okay, so you have already, okay, I have also studied it, so you have already studied it in class 11th, so you must have studied something about politics. So I'm just trying to refresh your ideas here, what could be the meaning of politics. Okay, we'll try to learn what could be the meaning of politics. Okay, fine. So this is you, I mean students, okay, the girls student and boys students, and this is me, okay, the खरूस टीचर जिससे आप क्लास में मिलते थे लेकिन आजकल हम लोग फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, that's another thing, but this is the character I have created here. Okay, this is me. This is me, Mr. Anand, and this is my girls student, and this is you, my favorite boys student. Okay, so now think about the words that is coming on the screen. Okay, what is politics about? इनमें से किसके बारे में पॉलिटिक्स है, क्या है पॉलिटिक्स, इनमें से कौन कौन से टर्म हैं जो आपने पॉलिटिक्स के बारे में सुना हुआ है, ठीक है, और ये जो वर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो आप सोचते हो कि पॉलिटिक्स ये है, ठीक है। थोड़ा सा एक फनी सा एग्जांपल है बच्चों, है ना, कभी कभी क्या होता है, आप लोग क्लास में जब स्टडी कर रहे हो तो होता क्या है कि कोई बच्चा आता है या आप आपस में ही बात करते हो, है ना, उसने जो है मेरे साथ पॉलिटिक्स कर दी, है ना,
कभी कभी आप जब है ना कुछ गॉसिप करते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में, है ना, कि यार उसने उसके साथ पॉलिटिक्स कर दी, है ना। हम भी बात करते हैं, है ना, कभी कभी टीचर्स में भी हो जाता है ना, इस टीचर ने उस टीचर के साथ पॉलिटिक्स कर दी। मैं ऐसे थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए ये बातें कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा सा फ़नी है और हमारे लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा हो जाता है हमारे आपस में बातचीत इस तरह की। तो क्या लगता है यहाँ पे पॉलिटिक्स का क्या मतलब हो सकता है, जो हमने भी बात की है ना, कि उसने उसके साथ पॉलिटिक्स कर दिया, है ना। डेली लाइफ में हो जाता है इस तरह की चीज़ें। तो पता नहीं हम उस समय उस पॉलिटिक्स वर्ड का मतलब हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं। लेकिन चलिए कभी फेस टू फेस मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका क्या मतलब होता है वहाँ पॉलिटिक्स से। मेरा मतलब क्या हो सकता है अगर मैं इस तरह की बात करूँ, है ना, कि उसने मेरे साथ पॉलिटिक्स कर दी, तो मेरे दिमाग में क्या रहता है पॉलिटिक्स का जो मीनिंग होता है वहाँ पे, कि किसी ने कोई, है ना, ट्रिक कर दिया किसी के साथ, है ना, या तो अपने बेनिफिट के लिए जो है हम दोनों के बीच में जो है दरार डाल दी, है ना, उसकी चुगली उसके पास कर दी, है ना, शिकायत करना मतलब, है ना। तो जिससे क्या हुआ कि मे बी हम दो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, किसी ने उसके पास बोल दिया नहीं नहीं मैं उसके बारे में ऐसा बोल रहा था, है ना, खराब बोल रहा था, तो हम दोनों की दोस्ती टूट जाएगी, है ना, या थोड़ा सा जो है एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है, उसको हो सकता है कि मेरे फ्रेंड से क्या हो, कुछ बेनिफिट्स लेने हो तो वो बेनिफिट ले लेगा वहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, ये जो टर्म्स आप देखोगे स्क्रीन पे, ये देखो, ठीक है आप, और उसके बाद जो हमने बात की देखते हैं कि क्या वो पॉलिटिक्स में आता है या नहीं आता है। एक जो सिंपल सा एक डेली लाइफ का एक फनी सा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, क्या वो पॉलिटिक्स में आता है या नहीं, क्या उसको हम बड़े स्तर पर, है ना, वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, क्या उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बच्चों मुझे लग रहा है आप लोगों ने तब तक इन टर्म्स के बारे में सोच लिया होगा कि ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं इनका क्या मतलब है और क्या यही पॉलिटिक्स है, इनमें से कौन सा पॉलिटिक्स है। बच्चों तो आप बताइए कि इन वर्ड्स में से कौन सा आपको लगता है कि वो पॉलिटिक्स है। इज पॉलिटिक्स पावर स्ट्रगल, इज पॉलिटिक्स अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, क्या लोगों को मिलता है, कब मिलता है, किसको मिलता है और कैसे मिलता है, ठीक है। क्या पॉलिटिक्स इसके बारे में है। गवर्नेंस ऑफ नेशन, क्या एक नेशन को गवर्न करना, रूल करना, पॉलिटिक्स इसके बारे में है। क्या पॉलिटिक्स कंपटीशन के बारे में है, ठीक है। क्या पॉलिटिक्स आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नमेंट, है ना। आर्ट एंड साइंस क्या है, किसी चीज को चलाने का तरीका है एक तरह से, है ना, रीजन्स, स्ट्रैटेजीज। तो क्या आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे चलाया जाए, उसके चलाने का फुल फ्लेज जो है मेथड एक तरह से, ठीक है। गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट पॉलिटिक्स है, सरकार जिसको हम बोलते हैं, क्या वही पॉलिटिक्स है। मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट बच्चों होता है टेंशन, है ना, किसी के बीच थोड़ा लड़ाई हो जाना। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली, है ना, डिशुम डिशुम हो रहा है लड़ाई जो है वो मेंटली भी होती है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन होना, इमोशनल टेंशन होना, कुछ भी, ठीक है। तो उसको रिजॉल्व करना, है ना, उसको रिजॉल्व करने का जो तरीका है, रिजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व मतलब उसको सॉल्व करना। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का जो है वो तरीका पॉलिटिक्स है। क्या सोचते हो आप, ठीक है। चलिए कुछ ना कुछ तो आपने सोचा ही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या है पॉलिटिक्स, ठीक है। यहाँ ये दोनों तो बड़े क्यूरियस दिख रहे हैं, है ना, ये भी सोच रही है, आप भी सोच रहे हो, है ना, वेरी नाइस। ऑल स्टूडेंट्स आर थिंकिंग वेरी सीरियसली हियर। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट दे आर थिंकिंग। ओके, so again you are coming in my class on the screen and here I am again. Okay, so now the first observation बच्चों from the last slide that there is no one specific definition. Okay, कि कोई एक definition नहीं है पॉलिटिक्स का, ठीक है, वो हम दे ही नहीं सकते। उसके बाद जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, देयर आर सेवरल, ठीक है, देयर आर सेवरल डेफिनेशंस, ये देखिए, ठीक है,
several definitions of politics. There are several ways through which you can define politics. Politics is not just about one thing and one term. And let's go back to our previous slide for a moment. Okay, so now when we discussed on the next slide that there is no one specific definition of politics, there are many definitions, there are several. Different people define politics in different ways. You will define politics in different ways. People in other countries would define politics in different ways, and several scholars of political science, one scholar will define it in a different way. Another will say that no, I do not agree with you, and I will define, suppose one person says that politics is about power, who has power, and the struggle for attaining more power. ठीक है. दूसरा बोलेगा no, I do not agree with you, I think it's about governance of a nation. ठीक है. Next person would say that no, I think it's about power struggle. Okay. Next person would say no, I think it's about resolving the conflicts between nations, between people, between states. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन. इट मीन्स दैट दिस ऑल टर्म्स आर पॉलिटिक्स. ये जितने टर्म्स आप बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, एवरी टर्म इज रिलेटेड विथ पॉलिटिक्स. ठीक है. आप जो भी यहाँ पे उठा लो टर्म इनमें से, ठीक है, 3 to 5, 5 to 7, 8. ठीक है. ये 8 टर्म्स यहाँ पर हैं. इनमें से कोई भी आप टर्म उठा लीजिए, ठीक है, वो सभी पॉलिटिक्स से क्या है, रिलेटेड है. ठीक है बच्चों. तो नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से मूव करते हैं हम. अगेन न्यू पीपल आर कमिंग, हियर आई एम. नाउ द डेफिनेशन. एक क्या जनरलाइज डेफिनेशन दे सकते हैं. ठीक है. तो मैंने कोई अपनी डेफिनेशन देने की कोशिश नहीं की है, ना तो मैंने कोई बुक से ली है, मतलब एनसीईआरटी से. एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है जिसका कि मेंशन भी है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में, और उस ऑथर को मैं पढ़ता रहता हूं, तो उनके एक डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे कोट किया है आपके लिए. ठीक है. पॉलिटिक्स रेफर्स टू द एक्टिविटी. ये ध्यान रखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे. एक्टिविटी थ्रू विच पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल अंडर विच दे लिव. देखिए ये डेफिनेशन इसलिए दिया बच्चों मैंने कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है. क्या करता है कि ये जो सारे टर्म्स हमने पीछे वाले स्लाइड पे डिस्कस किया, उन सबको इंक्लूड कर लेता है ये. ठीक है. उन सबको इंक्लूड कर लेता है. इसलिए ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे कोट किया है, बस आपको समझाने के लिए कि पॉलिटिक्स क्या है. सभी चीजें हैं, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किया. पॉलिटिक्स रेफर्स टू द एक्टिविटी. ठीक है. ये एक्टिविटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन उसका एम क्या होगा, एम हमें जानना जरूरी है कि उसका गोल क्या है. एक्टिविटी थ्रू विच, ठीक है, पीपल क्या करते हैं, पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल. मेक मतलब जनरल रूल बनाते हैं, ठीक है. प्रिजर्व रखते हैं मतलब पहले से जो रूल बना हुआ है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करके उसको बचाए रखते हैं. तीसरा अमेंड, अगर किसी रूल में कोई चीज जरूरत पड़ती है उसको चेंज करने की, कि एक चीज इसमें गलत है, इसको अब चेंज करना चाहिए हमें, ठीक है, तो उसको अमेंड करना, उसको चेंज करना, ठीक है, उसको बदलना थोड़ा सा, इसको, ठीक है, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स. लेकिन ये कहाँ की पॉलिटिक्स, उन रूल्स के अंदर वो जहां पर रहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स. ठीक है. कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम आगे जाके, तो उससे और चीज़ें क्लैरिटी आएंगी. देखिए अगर हमें अपने देश में रहना है तो देखिए हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर भी डालते हैं कभी कभी, ठीक है, कि ये लॉ जो है गलत है. अगर वो लॉ आ रहा होता है तो ठीक है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करके हम क्या करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं अगर वो गलत लॉ है तो. ठीक है. कुछ अच्छे लॉ हैं जैसे कि आरटीआई, ठीक है बच्चों, आरटीआई हमारे देश में, इसको अगर थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा कानून है, इसको, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखा जाना चाहिए, इसको कमज़ोर नहीं किया जाना चाहिए. ठीक है.
तो हम जहाँ रहते हैं एक रूल में रहते हैं ऑब्वियसली बच्चों, ठीक है, नियम कानून के अंदर हम रहते हैं, तो उन नियम कानूनों को बदलते रहना, ठीक है, प्रिजर्व रखना अच्छे कानूनों को, और जरूरत पड़ने पर उनमें परिवर्तन करना, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी इसके लिए जो हम करते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसमें पावर भी आ गया है ना, कि आप जब गवर्नमेंट बना रहे हो तो है ना, गवर्नमेंट पावर के लिए, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज आपस में compete करती हैं कि कौन जो है गवर्नमेंट का पावर जीत पाएगा, ठीक है, ज़्यादा सीटें लाकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वो भी होता है, ठीक है, दो स्टेट के बीच लड़ाई हो गई, दो ग्रुप के बीच हो गया, ठीक है, वो भी रिजॉल्व होता है, उसके लिए भी पॉलिटिक्स है, ठीक है। पावर बैलेंस का भी है, ठीक है, ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को जो है ऑपोजिशन क्या करती है, बैलेंस करके रखती है, वो कुछ गलत काम करती है तो ऑपोजिशन उसका अपोज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स क्या है, तो ये मतलब हम समझ लेंगे तो इसके स्केल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। घर में भी पॉलिटिक्स हो जाती है, ठीक है, तो स्केल अलग अलग होगा, ठीक है, फ्रॉम यू नो it could be from village to district to state to nation and to international, ठीक है, and again the world. So I hope that you must have understood something about what do we mean by politics. Okay, so let's move on to the next slide. Okay, before we'll move on to the next slide, you are saying something. Okay, fine, what you are saying? Okay, good for me. I can write anything and my teacher can't say it's wrong. Very good, nice. देखिए आप लोग बहुत खुश हैं, है ना क्योंकि इसके कई डेफिनेशंस हैं पॉलिटिक्स के, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, टीचर जो है उसको गलत नहीं कर सकता, है ना, पुअर मी ठीक है, ऑब्वियसली सही बात है, ठीक है, आपके आंसर को हम गलत नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपकी ओपिनियन है कि आप वहाँ पे पॉलिटिक्स का डेफिनेशन क्या लिखते हैं। हाँ, ओवरऑल जो एक अंडरस्टैंडिंग उसमें दिखनी चाहिए कि हाँ आप ये बात समझ रहे हैं कि हाँ पॉलिटिक्स के कितने डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। वेरी नाइस, तब तो आप बहुत खुश हैं। ओह वेरी नाइस, यू आर लाफिंग। ओहो दांत दिखा रहे हैं आप शक्तिमान की तरह। वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं, जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तब मैं जो है अपना ये बदला चुकाऊंगा आपसे। अच्छा, हंस भी रहे हैं आप लोग, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। एनीवे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो बिफोर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है बच्चों, बिफोर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे आए इसके पहले देखते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पहले क्या था, ठीक है, क्या बातें हो रही थी। आप लोग क्लास में आ गए हैं, वेरी नाइस। तो चलिए, क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था। बिफोर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हम बात करें, उसके पहले क्या था, किस तरह के पॉलिटिक्स की बात होती थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। इंटर का मतलब, इंटरनेशनल मतलब इंटर प्लस नेशनल प्लस पॉलिटिक्स, इसको हम 3 वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब बिटवीन, है ना, बिटवीन नेशनल। नेशनल का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट नेशंस लाइक इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, रशिया, बांग्लादेश, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें। इंटरनेशनल मतलब नेशन के बीच जो पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, नेशन के बीच जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको बोलेंगे क्या, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है बच्चों। तो इस पॉलिटिक्स में सपोज कि पॉलिटिक्स इज अ गेम, ये भी मान सकते हैं, व्हाई नॉट, ठीक है, गेम में भी देखिए पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। तो सपोज इट्स अ पॉलिटिक्स इज अ गेम, तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो बच्चों, ये एक जो डायग्राम है इसमें देखिए कि कौन कौन, सपोज दिस इज इंडिया, एक गेम है, इसमें कौन कौन से प्लेयर हैं यहाँ पर अभी फिलहाल, इंडिया, आर मीन्स यहाँ पे रशिया, ठीक है, और यू यहाँ पे मैंने यू दिया है, ये यूएसए है, ठीक है बच्चों, यूएसए, ठीक है बच्चों, ये है यूएसए, ये है इंडिया, ये है रशिया, और ये है यूके मतलब ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड जिसका पहले का नाम था, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपस में देखिए, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं। ये भी दोनों तरफ एरो का मतलब है कि बोथ नेशन आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कनेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। इंडिया यूके से कर रहा है, यूएसए रशिया से कर रहा है, यूके इंडिया से, ठीक है, यूएसए इंडिया से, रशिया जो है यूके से कर रहा है, यूके रशिया यूएसए रशिया से कर रहा है। मतलब आपस में ये जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है ये कंट्री के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो इस गेम में ये जो पॉलिटिक्स यहाँ पे जो हो रही है, मेन प्लेयर्स कौन है बच्चों? अच्छा, यू आर थिंकिंग, हाँ आई नो this is a thinking smiley, okay fine. So what have you thought, what is coming in your mind right now? Who is the main player in this game right now? Tell me. Obviously you cannot tell me right now, but tell yourself, okay, what who is the main player here? Okay, I think you have already guessed it. The main player is, oh, you are saying something, okay fine, what you are saying? Oh, it means international politics is like a game with only one type of player. Obviously there is only one type of player, है ना? 4 players हैं 4 players, but they are all of one type. और वो टाइप क्या है बच्चों? मेजर प्लेयर्स क्या है, आपने गेस कर लिया होगा, नेशन स्टेट। आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है, नेशन स्टेट का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है नेशन, अलग अलग जो नेशन है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंडिया, पाकिस्तान, अलग अलग जो कंट्री हैं उसी को नेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली इन पॉलिटिक्स जो उनका रियल जो एक टर्म है जिससे हम डिनोट करते हैं नेशन को, वो होता है नेशन स्टेट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मेन प्लेयर कौन है बच्चों? नेशन स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है, कौन है प्लेयर? जो ये पॉलिटिक्स का जो गेम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पहले की बात हम कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पहले क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और वहां पर जो मेन प्लेयर्स हैं बच्चों वो कौन है? नेशन, अलग अलग जो नेशन है हमारे, ठीक है, और कोई नहीं। प्लेयर कई हैं, जितने नेशन है उतने प्लेयर, लेकिन सभी एक ही टाइप के प्लेयर हैं। उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर नेशंस। नेशन के अलावे कोई उस गेम में पार्टिसिपेट वहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं कर रहा है। और नेशन मतलब नेशन के बिहाफ पे कौन पार्टिसिपेट? गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी नेशनल गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारा नेशन है इंडिया है, ठीक है। तो अगर हमें किसी कंट्री के यहाँ जाना है तो नेशन भारत उठ के तो नहीं जाता है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है जैसे फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो जाते हैं उस कंट्री में, ठीक है, वो वहाँ के प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेशन स्टेट बोला जाता है, ठीक है। नेशन जो है वो हमारी नेशन भारत है, स्टेट मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट, ठीक है। इन पे हम एक अलग थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम स्टेट, नेशन स्टेट, कंट्री, नेशन, इनके डिफरेंस थोड़े थोड़े हैं, ठीक है, और इनके मीनिंग को हम अलग से क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स आते रहते हैं पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली, ठीक है, तो हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बच्चों कंक्लूड यहाँ पे करते हैं सिंपली, ठीक है, कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पहले क्या था? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हम करते थे। जिस तरह की पॉलिटिक्स होती थी उसको बोलते थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और यहाँ पर पॉलिटिक्स कंट्री के बीच में होती थी, किनके बीच? नेशन के बीच, डिफरेंट नेशन के बीच। और जितने नेशन हैं उतने प्लेयर हैं, बट सभी का टाइप क्या है? एक है ना, ओनली वन टाइप ऑफ प्लेयर। जैसा कि है ना, आपने ये एक स्टूडेंट हमारा है, इन्होंने कहा ओनली वन टाइप ऑफ प्लेयर, है ना, सभी क्या है? नेशन है, ठीक है। तो बच्चों इसको यहीं पे खत्म करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे अभी के वीडियो को, ठीक है, क्योंकि सुबह हो गई है, यहाँ पे मंदिर में बेल बजने वाली है, फिर मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अभी तक यहीं रहने देते हैं। इस वीडियो को आप देखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर फीडबैक मुझे दीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत रहे तो मुझे ज़रूर कॉल करिएगा या हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय, ठीक है। मैं सुबह फिर से बनाऊंगा और फिर आपको जो है दूसरे वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।